Hello, welcome to the third episode of Small Talk, powered by Ergonomics, House of Premium Office Furniture. Quickly about Think. Think is a company which is focused in providing consultancy to micro and small businesses in any and every business problems. Small Talk is our segment where we interview creative peoples like architects and interior designers and try to understand how they work, and what is their design philosophy. So today I am here and very pleased to introduce Sharayu ma'am, Sharayu Bhavanwar ji. And मजे की बात क्या है कि I don't know how to introduce you. I know you from family background. I know you because मेरे बहुत close friend को शरयू ताई बोलते हैं. तो मेरे को मालूम नहीं कि how should I formally introduce you. So I'll not do those things. I'll just invite you for this small talk, and I hope you enjoy with us. Thank you, Ankur, for having me. This is my pleasure. This is my honor that you invited me and for this small talk. Thank you. थैंक यू सो मच. तो एक चीज ना बोलते हैं कि एक्सेलेंस को इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता है, एंड दैट इज आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग यू हियर. That's not true. Still, we are learning so many things. We are not excel at all. तो लेट्स स्टार्ट विद स्मॉल टॉक. तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप इस लाइन में कैसे आ गई, बिकॉज आई नो कि आपने शुरुआत से या एकदम कॉलेज से निकले और इंटीरियर डिजाइनिंग में आ गए, ऐसा तो नहीं है. तो वो स्टोरी क्या है, हाउ, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप यहाँ कैसे पहुंचे? Yes, that is true. I did my graduation in science because that time we don't have that much of exposure like architectural interiors because we are from a small town. And I did my commerce diploma, and afterwards some incidents happened and I felt that I can do interiors better. So I took my degree in interiors after that. Okay, So so how old were you when you started interior designing? Oh my god, that is tricky question. I cannot. But yes, I joined late. Yes. Yeah. तो मैंने कोशिश तो की मैम से पूछने की, बट शी इज स्टिल डिफेंसिव अबाउट हर एज. By the end of this session, we will find out. I think I will. Sure, yes. Another question I wanted to ask is कि जब आप स्मॉल टाउन बोलती हैं तो वो स्मॉल टाउन कौन सा है? You will surprise that I came from a tribal area. This is a Armory, Tahsil place from Gadchiroli district. Okay. Yeah, when people here यहाँ पे जब मैं बोलती हूँ ना तो they always say Naxalite area, but not like that. But yes, I came from that area. तो हमारे फोटोग्राफर्स भी ये बोल रहे हैं और मैं भी बता देता हूँ, यू आर टू सॉफ्ट फॉर बीइंग फ्रॉम एन एक्सेलाइट एरिया. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि ये इंटीरियर डिजाइनिंग जो फील्ड है, इसमें वास्ट चेंजेस है. पहले शायद आपने जैसा बताया एक्सपोजर नहीं था, धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ रहा है. तो क्या लोग आपको ऐसा कोई विजिबली चेंज दिखता है प्री कोविड, पोस्ट कोविड, कि अब ज्यादा लोग इंटीरियर्स कराना चाहते हैं या ज्यादा लोग इस फील्ड को एक्नॉलेज करते हैं और समझते हैं कि इससे उनका घर एनहांस होगा? Yes, definitely. अवेयरनेस तो बढ़ रहा है, बढ़ चुका है. और इंटीरियर इज अ वेरी वास्ट फील्ड, इंटीरियर वेरी डिटेल्ड फील्ड. सो मेनी सेगमेंट कैम इन इंटीरियर. सो लाइक लाइट, ऑटोमेशन, टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है. हम भी सीख रहे हैं उससे. तो क्लाइंट को ये है कि जब घर एक बार बन रहा है तो दे वांटेड द ऑल फैसिलिटीज ओवर देयर विद द गुड डिजाइनिंग, गुड प्लानिंग and a good aesthetic also. So this is a actually interiors. So yes, client are more aware now, and they respect now interior designers, and they are giving the good job, and they understand what is going on. तो एक जो सवाल है कि अब क्या पोस्ट कोविड उनको ऐसा लगता है कि यार हमको ऑफिस सेटअप चाहिए या एक वर्क स्टेशन सेटअप चाहिए अपने घर में? Yes, definitely पोस्ट कोविड बहुत सारे चेंजेस आए हैं माइंडसेट में. जैसे दे वांटेड अ गार्डन, अ बेसिक गार्डन. दे वांटेड a small space of gym. They can keep a 2 or 3 instrument like of gym. Right. And yes, they want a special segment of home office. Home office. Right. Yeah, exactly.
that useful for all kids, the housewives, the main person over there, a working person. Because जब कोविड में ऐसे हुआ था कि जब बच्चे वापस आए, जब लोगों को घर से काम करना पड़ा, तो इतनी तकलीफ गई है उनको कि एक पूरा रूम दे ऑक्युपाइड कर लेते थे. तो अभी वो सेगमेंट स्पेसेस का प्लानिंग हम लोग उस हिसाब से कर रहे हैं और उनकी वो डिमांड है आज के डेट में. राइट. तो एक सवाल है, मैं हर आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर से समझना चाहता हूँ ये बात कि हर क्लाइंट की एक अलग एक्सपेक्टेशन है, उसकी एक अलग नीड है. हमने बात की, उनके बजट अलग रहते हैं, उनकी आइडियाज अलग है. कभी वो पिंटरेस्ट पे ही फोकस करते हैं कि भैया ऐसा बना दो. समटाइम्स वो बोलते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, जिम भी चाहिए, वर्क स्टेशन भी चाहिए, जगह 500 फुट ही है. तो क्या क्या आप उनको कैसे कन्विंस करती है, या कैसे, हाउ डू यू हैंडल दिस सिचुएशन इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू. Actually, we understand the first their demands. We understand clients' social, cultural, economic background, their budget also, as you said, and we try to accommodate all these things in a one place. राइट. क्योंकि उसको रहना है, उनको यूज करना है, तो हमारी ये कोशिश रहेंगी कि हम सब चीजें उनको दे सके प्रॉपर उनके वे से, लेकिन एज अ with the best planning, with the best aesthetic. तो एक जो मेरा सवाल आ रहा है दिमाग में वो ये है कि मैंने जब आपके साथ काम किया तो आई सॉ यू कि यू वेंट आउट ऑफ योर वे कि भैया आज ये साइट का काम कर ही देते हैं, इसको करना है. क्लाइंट से फॉलोअप भी आप ही कर रहे हैं, वेंडर से भी फॉलोअप आप ही कर रहे हैं. तो ये नीड ऑफ द आवर हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए करना पड़ता है कि ये आपका बेसिक नेचर है एंड दैट इज हाउ यू वर्क. No, what happened about the particular that site? This is my near site. Actually, मेरे client का वो third repeated site था. Right. And he was busy with somewhere, and this is my responsibility to do that with the time frame. उनका जो inauguration था, so that's why sometimes we need to do, not always. But otherwise, we do with the planning. कि जो भी target है वो planning के साथ ही चलता है. बट या ऑब्वियस कुछ जगह पे हमें खड़े रहना पड़ता है. लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब क्लाइंट आप पे इतना ट्रस्ट करता है तो आपने जरूर ऐसा कुछ पास्ट में उनके साथ एक्सपीरियंस दिया होगा कि वो इतना ट्रस्ट कर रहे हैं आप पे. या दैट इज माय यूएसपी. आई कैन से आई एम वेरी लकी दैट आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ क्लाइंट कि वो मुझे रिपीटेड साइट दे रहे. अगर 10 साल पहले मैंने उनका पहला घर किया, एक 5 साल पहले उनका दूसरा घर किया, और दिस वाज अ ऑफिस. सो यस, मतलब मैं वही ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं. तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैम लक नहीं है, आपकी मेहनत है. प्लीज टेक क्रेडिट्स फॉर इट. थैंक यू फॉर दिस. तो एक सवाल है, और मुझे लग रहा है अपना बहुत फॉर्मली आंसर कर रहे हो, तो मैं आपसे ब्लंटली पूछना चाहता हूँ. ओके. कि आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स करते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो आपका क्या फेवरेट है? कौन सा बच्चा आपको ज्यादा प्यारा है? See, all are my babies. All are my babies. सब में हम लोग एफर्ट्स डालते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि दिस इज अ डिफिकल्ट और दिस इज इजी. सो माय कोर इज रेसिडेंशियल, ऑब्वियसली, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती है. एंड वी डिड ऑल्सो हॉस्पिटल प्रोजेक्ट ऑल्सो. एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट जो मैंने 5-7 साल पहले किया हुआ, द पीपल आर कमिंग लाइक नाउ ऑल्सो कि आपने वो किया था, बहुत अच्छा है, समथिंग लाइक दैट. सो इट मेक्स अस हैप्पी. एंड कुछ ऑफिसेस भी किए हैं आपने? Yes, recently we did 2-3 offices, and initially also we did boutiques also. So as a commercial plus residential, we did villas, flats, all type of work we did. तो फिर भी आप बताएंगे नहीं फेवरेट कौन सा है? That is partial. That will be a partial actually. Partial. I know. तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू मैम इज कि जब यंगस्टर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, आई एम श्योर कई लोग आपसे आके पूछते होंगे कि ये फील्ड में आना चाहिए क्या, तो व्हाट इज द नॉलेज यू वांट टू गिव? कि डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है, टैलेंट इम्पोर्टेंट है, कि दोनों का मिक्सचर इम्पोर्टेंट है? ओके, फर्स्टली आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि ये फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है, बच्चों ने जरूर आना चाहिए. और दूसरी चीज, टैलेंट एंड डिसिप्लिन बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट,
With that, hard work is also very important for this field. आपको कंसिस्टेंस होना, हार्ड वर्किंग होना और विद डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. आप डिसिप्लिन के साथ टैलेंट सीख सकते हो, नई स्किल आप सीख सकते हो, बट विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट हार्ड वर्क, यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस फील्ड. Positive attitude is everything. Yes, positive attitude with the client, because client is a main focus. You know, he is a guru, he is a like a god. He is your breeder, giver. Okay. तो So, वही जो हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि क्लाइंट बहुत पैसा खर्च करता है, Yes. तो इट इज एज अ यंगस्टर या एज अ प्रोफेशनल हमारी ड्यूटी है कि हम उसको निभाएं और उसको best to राइट. best we can serve to them. क्योंकि घर ऐसी चीज है आज की डेट में, विद सीइंग ऑल सिनारियो एंड एक्सपेंडिचर, कि शायद लाइफ में वो एक या दो ही बार बनाता होगा. Right. तो उनका वो जस्टिफाई होना इंटीग्रिटी के साथ बहुत जरूरी है. राइट. वो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम क्या उनको बेस्ट टू बेस्ट दे सकते हैं. तो प्रॉब्लम ये है शर्मी मैम आपके साथ बात करने में कि स्मॉल टॉक लॉन्ग टॉक बन जाएगा. मेरे व्यूअर्स बोलते हैं कि अंकुर अब तू ही बात करते रहता है. तो लेट मी जस्ट क्विकली कम टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस सेशन. मुझे ये जानना है कि किस काम पे आपको किक मिलती है, मजा किस में आता है. व्हाट इज द वर्क जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यार इसमें मेरे टैलेंट को सही तरीके से निखारने का, उभारने का आपको मौका मिला है. See, challenging work, every work is challenge for me. But जैसे मैं एक या दो एग्जांपल्स देना चाहूंगी कि मुझे एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें a small shutter and hardly 150 square feet की जगह पे I have to make two cabins for the owner, one pantry area, one account area and waiting also. और वो इतना ब्यूटीफुली टर्न अप हुआ, मतलब विदाउट बियॉन्ड इमेजिनेशन, कि क्लाइंट इज ऑल्सो हैप्पी और वो साइड को देख के काफी अप्रिसिएशन और बाद में काम भी हमें मिला है. एंड वन अगेन आई जस्ट वांट टू स्पेसिफाई, हमने रिसेंटली एक काम किया हुआ है ऑफिस का ही, जिसमें डबल हाइट उन्होंने क्रिएट की, Okay. बट दैट डबल हाइट डज नॉट क्रिएट द सफिशिएंट हाइट फॉर द सेकंड फ्लोर, आई मीन फर्स्ट फ्लोर. फर्स्ट इज ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर में सफिशिएंट हाइट वाज नॉट देयर. विदाउट फॉल सीलिंग हमने लाइट इफेक्ट्स इतने ब्यूटीफुली वहां पे क्रिएट किए कि बहुत अच्छे से टर्न अप हुआ एंड क्लाइंट खुश है. क्लाइंट खुश है. यस, दैट इज द बॉटम लाइन ना. आखिरी में अगर What- क्लाइंट खुश है तो yes. हमारा काम अच्छा है. यस यस डेफिनेटली. सो क्विक क्वेश्चन मैम, ओके. व्हेन शुड अ कस्टमर अप्रोच अ इंटीरियर डिजाइनर? जब साइट का उसने जमीन खरीदी है तब, जब वो आर्किटेक्ट से मिल चुका है तब, कि जब सिविल वर्क हो चुका है तब? देखिए, इनिशियली अगर आप अप्रोच करते हो तो वो बेस्ट है. जब आर्किटेक्ट का प्लान बन गया है बट आपकी कोई वहां पे काम नहीं शुरू हुआ है, दैट वाज द बेस्ट पार्ट, बिकॉज वी कैन change in the planning, like the room sizes, the bathroom sizes, the kitchen. We wanted to do the best of the best to do in the planning, and according that they can make a column beam position, a structural design. So that was the best part. कि Best जितना जल्दी time. हो सके, राइट? Yes, जितना जल्दी हो सके. थैंक यू सो मच मैम. तो माय लास्ट क्वेश्चन इज जो हम सबसे पूछ रहे हैं, बिकॉज अर्गोनॉमिक्स इज अ स्पॉन्सर ऑफ दिस इवेंट, Right. कि मॉड्यूलर फर्नीचर वर्सेस ट्रेडिशनल कारपेंट्री फर्नीचर, व्हाट इज योर टेक? आपका क्या सजेशन है और कैसे है? This is honestly, this is a combination of both. So site pay, some are modular and some are carpentry. Most of the carpentry, but somewhere we need really a modular furniture. तो Like जैसे किचन सब मॉड्यूलर करते हैं. या किचन है, आपकी चेयर्स तो ऑब्वियसली आती ही है, एंड फॉर ऑफिसेस टेबल्स some part is modular, some part is customized with the जगह, space, time, with the space, yeah, with the material. यस, समटाइम्स इज अ टाइम डिपेंडेंट थिंग कि अगर जल्दी चाहिए तो ये तो करवा लो. मॉडलर में जाना जरूरी है हमारे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. थैंक यू सो मच मैम. लेट अस एंड दिस स्मॉल टॉक हियर, बट बिफोर आई एंड, एक ट्रेडिशन है, वी थैंक पीपल. तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट दैट टाइम, ट्रस्टिंग अस कि हम जस्टिस कर सके आपके साथ. थैंक यू. There is a need to thank people behind the camera, Frames IQ. They are always very helpful with us.
जितनी हम गलतियां करते हैं उसको छुपाने के लिए जितनी ये लोग मेहनत करते हैं, दे आर पीपल वर्थ वर्किंग विथ. अगेन थैंक यू एंड प्लीज ड्रॉप इन योर कमेंट्स. आपको ये एपिसोड कैसा लगा, एंड इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड टू शरयू मैम, you can call me anytime and I can connect you with her. Thank you so much. Thank you, Ankur, Thank for you. having me.